ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਰ ਵਰ ਟਾਈਮ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਇੱਕਦਮ ਪੀਕ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਨੀਚੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਤੇ ਕੰਧੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੋ ਟੈਕਲ ਕਰਨੇ में ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੇਖਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। तो थोड़ा जा आज ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਦਾ, ਜਸਟ ਟੂ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ ਯੂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕੀ ਇਹਤਿਆਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਂਡ ਓਨੈਸਟਲੀ these are critical time, these are very important time, so we should not be very complacent। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕੰਪਲੇਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੋ ਜਸਟ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਅ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਪਿਛਲੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਡੈਥਸ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਫੇਸਿੰਗ। ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 763 ਹੈਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 622 ਕੇਸ ਕੁੱਲ ਪੂਰੇ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਫਰਵਰੀ 'ਚ 762 ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਉਹ 1.5% ਸੀਗਾ, ਫਿਰ 2.5% ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ ਵੱਧ ਕੇ 5% ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਡੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਥੋੜਾ ਡੇਟਾ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ 9 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ 120 ਕੇਸਿਸ ਕੁੱਲ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। 8/3 ਨੂੰ 76 ਸੀਗੇ, 7/3 ਨੂੰ 84 ਸੀਗੇ, 6/3 ਨੂੰ ਅਗੇਨ 108 ਸੀਗੇ, 5/3 ਨੂੰ 104 ਸੀਗੇ। ਤੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਅਗਸਤ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੀਕ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪੀਕ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਲਮੋਸਟ ਇਟ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਟੱਚ 300 ਕੇਸਿਸ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਐਟਲੀਸਟ 1/3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਮਾਸਕ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਬਚਾਵ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਅਮੂਮਨ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹਾਂ ਬਾਹਰ, ਲੋਕੀ ਹਾਲੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਓਲਡ ਏਜ ਪੈਰੈਂਟਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਮਹਿਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਔਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਸਟ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਹੋਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਗਰ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ ਐਕਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ 791 ਹੈਗੇ, 791। ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ 150 ਜਾਂ 200 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਰ ਟਚਿੰਗ 800 ਕੇਸਿਸ। ਤਾਂ ਇਹ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕहीं ਨਾ ਕहीं ਸਤਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਡੀਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂ L3 ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 14 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ। 14 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। L2 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 32 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ। 2-4 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਮੂਮਨ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਲੋਕੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਵਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਥਲੈਸਨੈਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ 94 ਤੋਂ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਵਰ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਹਾਈ ਹੈਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਗੈਟ ਯੋਰਸੈਲਫ ਟੈਸਟਡ। ਡੋਂਟ ਡਿਨਾਈ ਦਾ ਫੈਕਟ, ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹੋਗੇ। ਅਨਲੈਸ ਐਂਡ ਅੰਟਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੈਪਰੇਟ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਦੇਅਰ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਸਟ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਅ ਕੇਸ, ਟੁਡੇ ਵੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰਡ ਅ ਡੈਥ ਵਿਦਿਨ 24 ਆਵਰਸ ਆਫ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ। ਸੋਚੋ ਕੱਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕਦਮ ਠੀਕ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਅਚਾਨਕ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੱਕਦਮ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਤਾਂ ਕहीं ਨਾ ਕहीं ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਸਪੌਂਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, डिटेक्शन टू डेथ कट नहीं होना चाहता है। इसलिए जिन्नी जल्दी तुसी जिहड़ा हैगा अपना टेस्ट कराओगे, झूठ नहीं बोलना है अपने आप से जी। थोड़ा जा भी फीवर हो टेस्ट करा लो। मैं नाल दे नाल इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो माध्यम तो इंडियन मैडिकल एसोसीएशन दे नाल भी मीटिंग करांगा। सारे प्राइवेट क्लिनिक्स नूं ये मैं अपील करदा, अगर तुहाडे कोल कोई केस आंदा जिथे फीवर हाई हैगा, अगर सिटी ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚੈਸਟ ਸਿਟੀ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਹੈਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਬ੍ਰੈਥਲੈਸ ਹੈ, ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਗਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਗੈਟ ਦੈਮ ਸੈਲਫ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਦੈਮ ਟੂ ਟੈਸਟ। ਔਰ ਇਹ ਡੇਟਾ
ये सारा डेटा प्राइवेट क्लिनिक्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜਣਗੇ। बट इफ़ यू फेल टू गिव अस दिस इन्फॉर्मेशन वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। मतलब दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल टाइम्स। एक जान साडे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुहाडी एक सपोर्ट, तुहाडी एक इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करके अगर असी एक जान बचा लिए, इस तो बड़ा कोई पुण्य नहीं है जी। जस्ट टू गिव यू अनदर परस्पैक्टिव, कंटेनमेंट जोन साडे हुण 4 बन गए पिछले 10 दिनों के विच। पिछले मैंने कोई कंटेनमेंट जोन नहीं सीगा। एक तुहानू मैं डेटा शेयर करना चाहूँगा जी। 12 पॉजिटिव आए जो असी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करन लगे तो 128 कॉन्टैक्ट्स जिहड़े हैगा हाई रिस्क कॉन्टैक्ट आए। इन 128 कॉन्टैक्ट दे विच 72 लोग पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं 60% पॉजिटिविटी रेट है। तो दीज आर हाईली कंटेजियस सॉर्ट ऑफ स्ट्रेन दैट जो वी आर एनकाउंटरिंग। कहीं ना कहीं स्ट्रेन दे विच भी चेंज हो सकता है, वी आर नॉट एब्सोल्यूटली कन्फर्मड अभी। तो कंटेनमेंट जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन असी बनाया है, एक प्रताप नगर पटियाला दे विच हैगा, दीप नगर पटियाला स्ट्रीट नंबर 3 है, राजा एंकलेव नियर 21 नंबर फाटक, स्ट्रीट नंबर 5 रंजीत नगर ब्लॉक ए पटियाला। ये 4 साढ़े कंटेनमेंट जोन है। असी हर रोज़ शाम को जो पिछले 4-5 दिनों के जो डेटा एनालाइज किया, जो पोटेंशियल हॉटस्पॉट अगले 5 या 7 दिन के बन सकते हैं। पटियाला के न्यू मेहर सिंह कॉलोनी, अर्बन स्टेट गुड अर्थ कॉलोनी। अर्बन स्टेट थोड़ा जा क्रिटिकल होया पिछले 1-2 दिनों। वी विल अगेन हैव अ सर्वेलेंस टीम, विल हैव अ एपिडेमोलॉजिस्ट, वी विल बी कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग। लोड पेगी तो असी अर्बन स्टेट के भी छोटे कुछ माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पाएंगे। राजपुरा के गोबिंद कॉलोनी और दालमिया विहार, तो ये 5 से 6 एरिया जिथे मैनू लगता है कि अगले 2-3 दिनों के पोटेंशियल हॉटस्पॉट बन सकते हैं। साडे वल्लों कोशिश यही है कि अगर कंटेनमेंट जोन बनते, इसेंशियल जी सप्लाई लाइन है वो भी एक्टिवेट की जाएगी। किसी भी सिटीजन को किसी तरह की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जी, वैक्सीनेशन। साडी जी पटियाला की वैक्सीनेशन है वो बहुत अच्छे नोट पे शुरू हुई थी, बट कहीं ना कहीं लोगों के विच हाले भी बहुत स्टीरियोटाइप है, बहुत क्वेश्चंस है। आई वॉन्ट टू क्लियर दैट एयर, आई वॉन्ट टू क्लियर दैट स्पेकुलेशन जी। वैक्सीनेशन इज़ द सेफेस्ट वे टू गेट आउट ऑफ दिस डिजीज़। आई हैव वैक्सीनेटेड माई सेल्फ। बहुत सारे जोड़े है बुजुर्ग बंदियां ने भी अपना वैक्सीनेशन कराया। 2-3 चीज़ है जी पिछले 10 दिनों से अगर आप देखिए, देर आर सम केसेज इन अनदर डिस्ट्रिक्ट जिथे वैक्सीनेटेड बंदे भी पॉजिटिव आए हैं, बट उन्होंने सिम्पटम ना दे बराबर है, और जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया उन्होंने सिम्पटम हैवी है। तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन करा के बचाव हैगा। कोशिश ये रही है कि वैक्सीनेशन असी वध तो वध लोगों को एक बार च करा लिए। इसलिए टुडे वी हैव एक्टिवेटेड अ सेल। कोशिश ये है कि पहले जिथे 9 बजे से 3 बजे तक होंदी सी वैक्सीनेशन, हुण टाइम वधा के 9 तो 6 करता हैगा। All holidays would be working for vaccination. There will be no holidays for vaccination. I'll read out the list very soon. List of government hospital जिथे vaccination हो रही है: भादसो CHC, रेलवे हॉस्पिटल DMW, पटियाला दूधन सादा CHC, कालो माजरा राजपुरे CHC, माता कौशल्या, मॉडल टाउन नाभा CHC, पात्रा CHC, पुलिस लाइन, राजेंद्रा मेडिकल कॉलेज, राजपुरा SDH, समाना SDH, शतराना CHC, तिरपड़ी CHC और कौली CHC। ये 15 गवर्नमेंट के अस्पताल है जिथे असी वैक्सीनेशन कर रहे हैं। 9 तो 6 हर रोज़ इतने वैक्सीनेशन होएगी। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी जोड़ा है हम फैसिलिटी अवेलेबल है। तो कोई प्रायर रजिस्ट्रेशन कराने की लोड़ नहीं, तुसी आओ उत्थे रजिस्ट्रेशन कराओ, बस अपना आधार नंबर या पैन कार्ड ले आओ, सो दैट सानू नाल दे नाल असी तुहाडा रजिस्ट्रेशन करा के वैक्सीन का डोज दे सकीए। उसी तरह प्राइवेट हॉस्पिटल साढ़े 13 थावां 'च प्राइवेट हॉस्पिटल दे विच वैक्सीनेशन हो रही है। अमर हॉस्पिटल, अरोड़ा हॉस्पिटल, गर्ग मिशन हॉस्पिटल, ज्ञान सागर अस्पताल, नीलम अस्पताल, पटियाला हार्ट इंस्टीट्यूट, प्राइम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सद्भावना मेडिकल एंड हार्ट हॉस्पिटल, साहनी हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम, स्मृता नर्सिंग होम, वर्धमान महावीर हेल्थ केयर, सिंगला अस्पताल, कोलंबिया एशिया अस्पताल। तो मैं वापस वही कहना चाहता जी, प्लीज़ मेक श्योर तुहाडे नियर डियर वंस होवे, तुहाडे घर दे कोई बुजुर्ग है 60 साल तो उपर जिन्ने भी बुजुर्ग है उन्होंने मैंडेटरी वैक्सीनेशन करने की सानू हिदायत है। भारत सरकार पंजाब सरकार वालों ये हिदायत आई है। 45 साल से लेकर 60 साल के जिन्ने भी इस एज ग्रुप के जो भी सिटीजन है, अगर कोई अंडरलाइन कोमॉर्बिड कंडीशन है, हाइपरटेंसिव है या BP है या डायबिटिक है या XYZ कोई और कोमॉर्बिड कंडीशन है, काइंडली अपने प्राइवेट प्रैक्टिशनर या गवर्नमेंट प्रैक्टिशनर तो हेल्थ सर्टिफिकेट लेके अपलोड करो। यू विल बी ऑल्सो एंटाइटल्ड फॉर वैक्सीनेशन। साढ़े सारे हेल्थ फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर, इन्होंने भी असी वापस मोटिवेट कर रहे हैं कि तुसी वध तो वध आके अपनी वैक्सीनेशन कराओ। आज असी स्पेशली टीचर्स को भी रिक्वेस्ट की कि तुसी भी अपना आके वैक्सीनेशन कराओ, बिकॉज टीचर्स हैव दी सब तो इंपॉर्टेंट ये होंगे कि बच्चों के नाल जिहड़ा हैगा ना दा कॉन्टैक्ट रहिंदा, और असी नहीं चाहते कोई बच्चों को किसी तरह की भी दिक्कत आए।
अगेन जी जस्ट कोविड L2 L3 फैसिलिटीज़ वापस एक्टिवेट हो गई, बहुत ज़्यादा पैनिक का इशू नहीं है, बट स्टिल वी आर हैडिंग फॉर अ पीक। जिवें कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पहले भी कहा कि होम आइसोलेशन केसेस वी विल प्रमोट, तो प्लीज़ अगर तुसी टेस्ट कराओगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ किसी तरह पैनिक की जरूरत नहीं, तुसी अपने घर ही रहोगे अनलेस एंड अंटिल यू आर नॉट इन अ वेरी सीरीयस नेचर ऑफ कंडीशन। तो सरकारी हस्पताल जिथे असी L2 और L3 फैसिलिटीज़ एक्टिवेट कीतियां हैगियां, राजेंद्र हस्पताल हैगा 350 बैड, माता कौशल्या 30 बैड, नाभा सिविल अस्पताल 50 बैड, सिविल अस्पताल समाना 50 बैड, सिविल अस्पताल राजपुरा 50 बैड, मिलिट्री अस्पताल पटियाला 50 बैड। प्राइवेट हस्पताल जिथे कि L2 L3 फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन इन्हों की कॉस्ट भी कैप की हुई है, वैक्सीनेशन की भी कॉस्ट असी कैप की हुई है। वर्धमान हस्पताल, स्मिता नर्सिंग होम राजपुरा, कोलंबिया आयशा हॉस्पिटल, फूल न्यूरो पटियाला, अमर हॉस्पिटल, बालाजी हार्ट केयर, सद्भावना हॉस्पिटल, प्राइम हॉस्पिटल, भाटिया हॉस्पिटल, नारायण हॉस्पिटल, नीलम हॉस्पिटल, ये प्राइवेट हस्पताल है जिथे L2 L3 फैसिलिटीज़ एक्टिवेटेड है। अगर तुहानू सरकारी 6 थावां च हैगी और प्राइवेट 11 थावां च हैगे। इस वेले अगर L2 फैसिलिटीज़ की ऑक्यूपेंसी रेट दसीए तो सिर्फ 2% ऑक्यूपाइड हैगा, 10% सरकार दे विच L3 ऑक्यूपाइड हैगे। प्राइवेट हस्पताल च L2 17% ऑक्यूपाइड हैगे और L3 बैड 20% ऑक्यूपाइड हैगे। तो हाले साडे कोल बैड की कोई कमी नहीं, बट वट वी आर सीइंग द राइजिंग ट्रेंड, ये बैड्स भी जिहड़े हैगे हुण भरनगे। इसलिए मैं बार बार ये कहंदा जी एहतियात, वैक्सीनेशन, कोशिश ये करो कि वध तो वध तुसी जिहड़ा हैगा एहतियात रखो, मास्क का यूज़ करो और अपने घर दे विच अगर कोई बुजुर्ग है, बच्चे, उन्हां दा स्पेशल ध्यान रखो।